ناظرین، مذاکرات کے حوالے سے کیونکہ جو قومی کانفرنس بیٹھی انہوں نے مذاکرات کی بات کی اور اس کے اوپر ایک رولا پڑ گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے مذاکرات کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ انہوں نے تو کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کی جائے، لیکن قومی کانفرنس کے اندر مذاکرات کی بات کی گئی۔ یہ ایک کنفیوژن ہے۔ اس پہ پہلے جو علیمہ خانم نے انٹرویو دیا، جو بات چیت انہوں نے کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر عمران خان صاحب نے کیا کہا اور قومی کانفرنس چاہتی کیا ہے، اور اس وقت مذاکرات کا کوئی ماحول بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، کیونکہ عمران خان کا جیل سے باہر آنا سب سے بڑی خبر ہوگی پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ علیمہ خانم نے ابھی سٹیٹمنٹ کیا دیا۔ انہوں نے کہا جو بھی مذاکرات کی بات کرے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے۔ کس کو عمران خان نے مذاکرات کا کہا ہے؟ عمران خان نے کسی کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی۔ یہ عمران خان کی فیملی آپ سے کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمود خان اچکزئی نے کبھی مذاکرات کی بات نہیں کی۔ محمود خان اچکزئی کیا بات کرتے ہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جمہوریت، رول آف لا اور انسانی حقوق کے تحفظ پر اکٹھی ہو جائیں۔ عمران خان کو میں منا لوں گا، یہی عمران خان چاہتے ہیں۔ یہ دہشت گردی کی عدالت کے بعد جب علیمہ خانم بات کر رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا۔ پھر اب فردر انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں، لیکن پہلے ذرا ہم رک جاتے ہیں مذاکرات والے معاملے پہ۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کے الفاظ میں دہرا دیتی ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ سہیل افریدی کو کہو کہ خیبر پختونخوا سے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑے، یعنی خیبر پختونخوا کے اندر جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی تیاری کی جائے، شروع کیا جائے۔ تو ایک تو اسٹریٹ موومنٹ ہے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے مذاکرات پہ دیکھیں۔ مذاکرات کی خبروں میں یہاں کچھ خبریں اور بھی چھپی ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات نہیں کرنے حکومت سے ابھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے مذاکرات کا اختیار علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو تحریک کی اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے کرنی ہے باہر موجود ہوتے ہوئے۔ تو عمران خان صاحب کی پارٹی کو مذاکرات کے حوالے سے کچھ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اس معاملے سے خود ہی باہر کر دیا ہے۔ اب مذاکرات ہونے کس چیز پہ ہیں، یہ ہے بڑا سوال۔ قومی کانفرنس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے حجت تمام کی۔ انہوں نے کہا یہ نئے انتخابات کروا دیں اور 2024 میں جو انتخابات ہوئے اس دھاندلی کے اوپر انکوائری کروائیں اور چیف الیکشن کمشنر تبدیل کروا دیں۔ یہ تین چیزیں تو اس وقت حکومت نہیں ہونے دے گی۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ایک ایسی حکومت ملی ہے جو وہ جانتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی نہیں تھی۔ مفت میں 25 کروڑ عوام کے اوپر ان کو حکومت مل گئی۔ دنیا کے ایک بڑے اور طاقتور ملک کے اوپر جو ایٹمی قوت ہے اس کی حکومت انہیں بغیر مینڈیٹ کے مل گئی، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ آئندہ انہیں مینڈیٹ ملنا بھی نہیں ہے، لہذا وہ کیوں اس حکومت کو ٹھکرائیں گے اگر انہوں نے اسے قبول کیا ہے۔ تو دیکھیں، اگر وہ اصول پسند ہوتے تو جس وقت یہ حکومت انہیں دی جا رہی تھی وہ اس وقت کہہ دیتے جناب ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم الیکشن ہار گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے حکومت کو قبول کیا۔ حکومت قبول کرتے وقت ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، اس کے خلاف رد عمل بھی آئے گا، لیکن انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی کر کے اب ٹائم پورا کرنا ہے، جب تک کہ آپ زور زبردستی انہیں نہیں نکالیں گے وہ نہیں نکلیں گے۔ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں، آؤ اکٹھے ہو جائیں۔ اور دیکھیں، آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے جو خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا، کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں، جتنے سمجھدار جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کھونٹے سے باندھنے کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آئینی کردار کے اندر محدود کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سارے سیاسی سٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جائیں، تو یہ کام ذرا آسانی سے ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر سارے سیاسی سٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بڑے آرام سے اس کے آئینی کردار میں واپس بھیجا جا سکتا ہے، فوج کی سیاست میں مداخلت ختم کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر یہ نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے عوام کو طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، اور ایک دن آئے گا عوام یہ کر بھی لے گی۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان نے یہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اسی دور میں ہو جائے، ابھی ہو جائے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آئینی کردار میں واپس چلی جائے۔ اور جانا تو ہے، ایک دن تو یہ ہونا پڑے گا، کیونکہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی حرکتوں کے بغیر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، ویسے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب ناظرین، جو خیبر پختونخوا میں تحریک کے حوالے سے بات چیت ہے، دیکھیں حکومت کو بھی اس وقت کوئی دلچسپی نہیں ہے، پہلے تو یہ آپ لے لینا، مذاکرات میں حکومت کو بھی کوئی اس وقت دلچسپی نہیں ہے۔ جب تحریک کھڑی ہوگی نا پھر حکومت واویلا کرے گی، پھر لوگ بولیں گے، پھر بار بار کہیں گے جی مذاکرات کیوں نہیں کرتے، بات چیت کیوں نہیں کرتے،
सियासी लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। अभी हुकूमत ने भी वही वाली रट पकड़ी हुई है जो रट एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ी हुई थी कि जनाब इमरान खान माफी मांगे। अब हुकूमत भी यही कह रही, क्योंकि हुकूमत एक बात जानती है कि इमरान खान से माफी नहीं है मंगवा सकते। ये उल्टे लटक जाएं, सीधे लटक जाएं, ये जो मर्जी कर लें, ये इमरान खान के पैरों में गिर जाएं, ये इमरान खान से माफी नहीं मंगवा सकते। जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं मंगवा सकते। ये करके देख लें। इमरान खान कहता है जी हारता वो है जो हार मान लेता है, ये उसका नजरिया है, इसके ऊपर वो खड़ा हुआ है, यही उसकी शख्सियत, उसका करैक्टर है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये कहेंगे कि जी इमरान खान माफी मांग ले और इमरान खान माफी मांग लेगा, ये होगा नहीं। उससे पहले इमरान खान से माफी मांगनी पड़ेगी इद्दत जैसे घटिया केस की, साइफर जैसे घटिया केस की, तोशा खाना जैसे भोंडे केसों की, उनकी बहनों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई उसकी, जो उनकी वाइफ के साथ किया गया उसकी, जो उनके रिश्तेदारों के साथ किया गया उसकी, जो खवातीन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की है उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती और जो बच्चों के साथ किया गया उसकी, और जो कत्लेआम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बार बार किया गया, इन चीजों की माफी तो इमरान खान से मांगनी पड़ेगी। अगर आवाम खड़ी होगी किसी दिन बाहर निकल कर आ गए लोग तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। अब तहरीक क्या बन रही है या स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, देखिए स्ट्रीट मूवमेंट जलसे जुलूसों से नहीं होगी। ये ऐसे भी नहीं होगी कि एक जगह पे बाहर आ गए वजीर आला और लोग इकट्ठे हो गए, उनसे बातचीत हो गई तो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं, ऐसे भी नहीं होगी। छोटे बड़े इकट्ठ हो गए, उनसे भी नहीं होगी। स्ट्रीट मूवमेंट जब ऑर्गेनाइज होती है ना तो उसका एक तरीकाकार होता है। स्ट्रीट मूवमेंट कैसे बनती है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि हर शहर के अंदर, हर हल्के के अंदर बाकायदा काउंटर्स लगते हैं, वहां पे नौजवानों की रजिस्ट्रेशन होती है, बड़े पैमाने पर नौजवानों को शामिल किया जाता है उस मूवमेंट के अंदर। नौजवान अपनी मेंबरशिप लेते हैं उस मूवमेंट के नाम के ऊपर, और फिर लाखों की तादाद में लोग जुड़ते जाते हैं। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि किस तहसील में, किस इलाके में, किस हल्के में, किस जिले में और किस डिवीजन में आपके कितने नौजवान तैयार हैं इस तहरीक के लिए। इस तरीके से एक तहरीक बनती है। जब स्ट्रीट मूवमेंट बनती है तो आपको पता होता है कि कौन सी गली में कौन सा नौजवान लीड करेगा, किस गली में कौन सा पॉलिटिकल वर्कर लीड करेगा, और ये वहां से अपने नौजवानों को या लोगों को निकालेगा। ये होती है स्ट्रीट मूवमेंट। नादरीन, कश्मीर के हवाले से, इसराइल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, अब चीजें सामने आ रही और खुलकर प्लेयर्स जो है वो सामने आ रहे हैं। नंबर एक, कश्मीर के अंदर जो कुछ भी किया गया किसी तरह करके जुम्मे के दिन मुज़ाकरात के अंदर लगाए गए, और ये एजेंसियों ने रिपोर्ट दे दी थी 1 तारीख की रात को कि जनाब कश्मीर हाथ से निकल रहा है, जो कुछ आप वहां पे कर रहे हैं या जो वहां पॉलिसी चल रही है ये काम नहीं करेगी। तो फिर फौरी तौर पे सियासी क़यादत को आगे लाया गया। जो गालम गलोच की जा रही थी, जो टाउट्स छोड़े हुए थे कि इनको गद्दार कहो, इनको बुरा भला कहो, यानी वहां पे मैंने कुछ इलाकों में चेक किया, उन्होंने कहा जी हमारे घरों में मर्द अभी बाकी नहीं है, ये सारे लोग चले गए हैं और जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। तो 3 जो मेन डिवीजन है, मुजफ्फराबाद डिवीजन है, मीरपुर है, रावलाकोट डिवीजन है, ये सारे आगे बढ़ते बढ़ते अब कोहाला के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर अवामी इज्तिमा मौजूद है। अब ये इतने लोग हैं कि सर ही सर नजर आते हैं हर तरफ। अवाम का एक समंदर है जो वहां पे पहुंच गया है, और ये सारे रास्ते लोग लड़ते हुए आए हैं। जो लोग पुंछ से आए हैं वो तो बहुत उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और पुलिस वालों को और एफसी वालों को उन्होंने बहुत मारा। इस्लामाबाद पुलिस वालों को आजाद कश्मीर में मुजाहिरीन ने बहुत मारा, और वो उन्हें इसलिए मारा कि ये लोग उन्हें मार रहे थे। यानी जैसे हमें ये दुख होता है ना, कोई यूनिफॉर्म में बंदा बैठ के जमीन पे मार खा रहा है और उसे मुजाहिरीन मार रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें दुख होता है जब यूनिफॉर्म वाले इकट्ठे होके आम आदमी को मारते हैं। हम पिछले 3-4 साल से लगातार मनाजिर देख रहे हैं, और इससे पहले भी हम माजी में देखते रहे हैं कि यूनिफॉर्म वालों को मारने का बहुत शौक है। ये चाहे पुलिस है, चाहे रेंजर्स है, चाहे एफसी है, ये बहुत मारते हैं, लोगों को मारते हैं डंडों के साथ, ठुड्डों के साथ, और इंसान को इंसान समझते ही नहीं, हत्ता कि इंसानों को गोलियां भी मार देते हैं। लेकिन जब ये काबू आ जाए अवाम के तो फिर अवाम भी मारती है। तो फिर अब रोना किस बात का, अब तकलीफ किस बात की? मामला तो उन लोगों का है जो इन्हें लड़ाते हैं आपस में। यानी मोहसिन नकवी गया अस्पताल में, मैं वीडियो देख रहा था, कैसी बेशर्मी और ढिठाई है। वो जाकर पुलिस वालों से पूछ रहा है डट कर लड़े हो ना, मुकाबला किया है ना, क्यों इनको तूने इंडिया भेजा था, या इनको लड़ने के लिए दहशतगर्दों से लड़ने के लिए भेजा था, या ये वो वाला एसएचओ है जिसने दहशतगर्दों से जाके बलूचिस्तान में लड़ना था? भाई आपस में पाकिस्तानियों से लड़ा के तो ये आगे पूछ रहा कि डट के लड़े हो कि बॉर्डर से बुलाए पुलिस वाले। अपने शहरियों के ऊपर अटैक करवाया, अपने शहरियों के ऊपर हमले करवाए, और बाद में चौड़ा होके आगे अस्पताल में उन्हें फूल देके पूछ रहा जनाब डट कर लड़े हो, मुकाबला किया है, मारा है। यार क्या बेशर्मी है भाई,
पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों से लड़ाते हैं ये बेशरम, और खुद ये एसी वाले कमरों में से नहीं मिलते, ये निकलते ही नहीं वहां से। ये चार चपेड़े इसको इन लोगों को पड़े तो इनको पता चले कि मार होती क्या है। इनको भी लटा के बांध के जमीन के ऊपर इनको लित्तर मारे जाए या डंडे मारे जाए तो इनको पता चले कि टॉर्चर होता क्या है। ये लोगों को टॉर्चर करवा के बीमार ज़हनियत के लोग वीडियोस बनवा के एंजॉय करते हैं कि जनाब हमें टॉर्चर करके दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। अस्पताल में जाके पूछ रहा कैसा तुमने मारा, तुम डट कर लड़े। यार उनको बॉर्डर पे भेजा था आपने, वो कोई इंडिया से लड़ने गए थे, वो कोई उधर तालिबान से लड़ने गए थे, या कोई दहशतगर्दों के साथ उनकी बलूचिस्तान में लड़ाई हो रही थी, या कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे कहीं पे आपने भेजा हुआ था मिशन पे जो वापस आए। भाई अपने शहरियों को मारने आपने भेजा था। अफसोस की बात यह है कि दोनों तरफ लोग मारे भी गए, दोनों तरफ लोग जख्मी भी हुए। अब कश्मीर पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, वो लोग खाली मार नहीं ना खाते, वो आगे से मारते भी है। पाकिस्तानी जो है इनमें ज्यादातर लोग खाली मार खा लेते हैं, लेकिन कश्मीरियों का थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ है, वो वापस मारते हैं, और जब वो वापस मारते हैं तो फिर तकलीफ भी होती है। अब जो मनाजिर मैंने देखे यानी अच्छे नहीं लग रहे मुझे देखने में, कि एफसी वालों को और पुलिस वालों को वहां लटा लटा के बिठा के जो है वो वहां के मकामी लोग आजाद कश्मीर के मार रहे हैं, मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इसी तरह ये एफसी वाले और पुलिस वाले वहां पे मकामी लोगों को भी मार रहे हैं, उन पे भी टॉर्चर कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकते हैं, उनके घरों के अंदर। इन्होंने तो औरतों को सड़कों पे घसीटा है, इन्होंने तो जलील किया है। अब मैंने अजीब चीज देखी कि पाकिस्तान के अंदर लोग अब इसके ऊपर दुख करने के लिए तैयार ही नहीं है, उन्हें तकलीफ ही नहीं हो रही यूनिफॉर्म वाले लोगों को मार पड़ रही है। वो कह रहे हैं ठीक है जी ये भी ऐसे ही मारते हैं, ये हमारी बच्चों को औरतों को मारते हैं, खवातीन को उठा के ले जाते हैं, ये बहन बेटियों को अगवा कर लेते हैं, बहुओं को अगवा कर लेते हैं, ये बच्चों को टॉर्चर करके माओ को वीडियो भेजते हैं, ये मासूम बच्चों को उठा के थानों में ले जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, ये औरतों को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, जेलों में डाल देते हैं। अब ये जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस को सोचना पड़ेगा। आपने कभी गौर किया है कि जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स है उसको इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, गंदा किया जाता है हमेशा पुलिस को। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े हमेशा पुलिस धोती है, एफसी धोती है। उन्हें कहते हैं गंदा काम है ये तुम करो, बदनामी होगी तुम्हारी, होगी जिल्लत होगी तुम्हारी। क्यों? ये इदारे नहीं है, इन्होंने तो रोजाना अवाम के बीच में रहना होता है, अवाम के बीच में जाना होता है। बहरहाल ये इनकी हरकतें इस वक्त नादरीन जो कोहाला में है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हैं और चंद किलोमीटर का फासला रह गया है जो आजाद कश्मीर की असेंबली है वहां से। तो ये मुजफ्फराबाद जब चाहे अब दाखिल हो सकते हैं, इनके पास ये ताकत भी मौजूद है। और दूसरी जानिब जो है वो नाके खत्म कर दिए गए, जितने नाके लगाए गए थे, जितना बंदोबस्त किया गया था वो खत्म कर दिया गया है। लेकिन सरदार उमर नजीर साहब ने, ये एक रहनुमा है, वन ऑफ देम, जो अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा है, तो इन्होंने कहा कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ फोर्सेस को अर्जा के मुकाम पर फिर इकट्ठा किया जा रहा है। याद रखो अगर इसके बाद किसी किस्म का एडवेंचर किया गया तो तमाम तर हालात की जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान खुद होगी। उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात बता दी। अब जनाब नाके तो खत्म हो गए हैं, लेकिन इन बेशर्मों ने अपने मफाद के चक्कर में, अपने इक्तदार के चक्कर में, अपनी ताकत के नशे में आजाद कश्मीर के अंदर नफरत का एक ऐसा बीज बो दिया है जो फसल अब पता नहीं हमें कब काटनी पड़ेगी। ये बेशर्मी हो चुकी है, ये बेगैरती हो चुकी है, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आजाद कश्मीर के अंदर नफरत का वो वाला बीज बो दिया है जिनकी फसल पाकिस्तान को कभी ना कभी काटनी पड़ेगी। और ये घटिया हरकत भी इसी रिजीम के जिम्मे है। सिर्फ अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए इन्होंने ये किया कि अगर आजाद कश्मीर के अंदर किसी तरह लोगों ने अपना हक छीन लिया तो फिर पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तानी भी यही करेंगे। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात इनको करने पड़ने थे। जरा मुज़ाकरात की टेबल देखिए आप। एक तरफ बैठे हैं वफाकी वुज़रा, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वुज़रा, मौजूदा वुज़रा, कैसे बड़े बड़े मुंह हैं इनके, चमकते हुए 100 वाट के बल्ब की तरह इनके मुंह चमकते हैं, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन खुराकें खाई हैं, इनके पास बेशुमार पैसा है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर्स में ट्रेवल करते हैं, ये इक्तदार के मालिक हैं, और करप्शन कर करके इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और दूसरी तरफ सामने कौन बैठा है? ये बिल्कुल चंद लोग, एक दुकानदार, एक आम आदमी, ये आया मुज़ाकरात करने के लिए अपनी कौम के बिहाफ के ऊपर। ये है तब्दीली जो आजाद कश्मीर में आई। पाकिस्तानियों को ये सीखना पड़ेगा और इससे सीखकर पाकिस्तानियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तानियों के पास रास्ता कोई नहीं है। अब नाज़रीन मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात में जो मेन चीज है वो वही 12 सीटें कि जनाब ये 12 सीटें जो है ना इनको तो फौरी तौर पे आप खत्म करें। अगर ये 12 सीटें खत्म नहीं होती तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती। बात आगे बढ़ेगी जब आप ये 12 सीटें खत्म करेंगे। अब इसमें कुछ इतलात आ रही हैं कि कुछ चीजें तय हो गई हैं और कुछ चीजें तय हो जाएंगी, लेकिन ये 12 सीटों पे है कौन, जरा आपको मैं बताता हूं। ये नाज़रीन एक पेशावर से वजीर खजाना, जो आजाद कश्मीर का वजीर खजाना है वो पेशावर से है, अब्दुल माजिद खान।
پھر اس کے بعد جو ہے وزیر ٹرانسپورٹ، یہ راولپنڈی سے آیا ہوا ہے، جاوید بھٹ،